We are solving October 2016. Following the trial balance of Bharat Limited is on 31st March 2016. 4 lakh equity shares of 10 each share capital, 12% debentures, long-term borrowings, profit and loss account, reserves and surplus, bills payable, trade payable, creditors, trade payable, sales, revenue from operation, general reserve, reserves and surplus, provision for doubtful debts. So ये old already होगा students credit side पे दिया. We'll see later on क्या करना है. Premises fixed asset, plant and machinery fixed asset, opening stock of finished goods, changes in inventories, debtors, trade receivables, goodwill, intangible asset, cash bank, cash and cash equivalent, interim dividend minus from P&L, reserve and surplus में P&L लिखेंगे, वहाँ पे subtract करेंगे. Purchase of finished goods, purchase of stock in trade, income statement, profit and loss statement, share issue expense, it is other non-current asset, salaries, employee benefit, general expense, other expense, advertisement expense, other expense, bad debts, other expense, interest on debenture, finance cost. Number 1, authorized capital of the company is 5 lakh shares of 10 each. Simple सा adjustment है. Write off 10% of share issue expense. So put a mark on share issue expense. उससे related एक adjustment है. We have to write it off. ठीक है. Next then. Stock of finished goods 31st March 16 9 lakh 50. मतलब closing stock है. Inventories में जाएगा और changes in inventories. Create provision for doubtful debts. So put a mark on debtors. मतलब ये new RDD की बात कर रहे हैं. Put a mark on debtors. 5% doubtful debts. RDD मतलब. Provide rupees 1,80,000 for income tax. Depreciate plant machinery at 15% per annum. Okay. From the above information, prepare profit and loss for year ended and balance sheet as on that date. So इस question में तो 6 adjustments है. Now my advice आप extra adjustment भी लिखो. Please record extra adjustment. Number 7, right? Number 7. Number 7 is write off further rupees 20,000. Write off further rupees 20,000. Write in your notebook या जहाँ भी space हो अपने textbook में जहाँ भी हो. Write this. Number 7. Write off further rupees 20,000 as bad debts. Number 7. Write off further rupees 20,000 as bad debts. मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. Number 7, what I said, write off further rupees 20,000 as bad debts. This is number 7. मैं extra adjustment लिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स. Number 8 लिखो. Number 8, goods selling price उसका good selling price 50,000 50. Bracket में लिखो cost price 40,000. This is adjustment number 8 now. Goods selling price 50,000. Bracket में cost price 40,000. Then continue. Sent on SENT sent on return basis. Sent on return basis is treated as sales. Is treated as sales. Goods selling price 50,000, cost price 40,000, sent on return basis. Return 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 basis is treated as sales. Is treated as sales. Number 9 last. ये हमने extra adjustment लिखना है स्टूडेंट्स. Goods destroyed. Goods destroyed 50,000 50. Comma. Claim accepted. Claim accepted 30,000. Claim accepted 30,000. Goods destroyed 50,000. Claim accepted 30,000. So number 7 मैंने लिखा है. Write off further rupees 20,000 as bad debts. Number 8, goods selling price 50,000, cost price 40,000, sent on return basis is treated as sales.
Number 9, goods destroyed rupees 50,000, claim accepted rupees 30,000. So in all 9 adjustments. 6 है already क्वेश्चन में, ये 3 एक्स्ट्रा हमने लिखा है स्टूडेंट्स. ओके, सो नाउ विल डिसाइड अवर नोट्स. शेयर कैपिटल है, डेफिनेटली यस है. रिजर्व्स भी है. नंबर 2, कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स वगैरह, या लॉन्ग टर्म लोन? नो स्टूडेंट्स, तो जाने दो. लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी नहीं है. एनी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स? नो. ट्रेड पेबल था, कोई क्रेडिटर्स वगैरह? यस स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दोनों था. सो दैट बिकम्स नंबर 3. अदर करंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स? आई डोंट थिंक सो. और अदर करंट लाइबिलिटी ट्रायल बैलेंस में तो नहीं था. एंड एडजस्टमेंट में कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह था? नो स्टूडेंट्स. ओके, नो अदर करंट लाइबिलिटी. शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है स्टूडेंट्स, कोई प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स सेट ऑफ करना, ऐसा कोई एडजस्टमेंट है? नो. शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं. फिक्स्ड एसेट? यस. नंबर 4, फिक्स्ड एसेट है 4. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी, डिबेंचर्स था सेकेंड आइटम. आई एम सॉरी, चलो देख लिया. जस्ट होल्ड ऑन. डिबेंचर्स है स्टूडेंट्स. सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ट्रायल बैलेंस में दिया है. डिबेंचर इज सेकेंड आइटम फ्रॉम द टॉप ट्रायल बैलेंस में. सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स विल बी 3 एंड trade payables will be 4. Fixed asset 5. No investments, no long-term loans advances. Other non-current asset hai, that is number 6. Inventories number 7. Trade receivable 8. Cash and cash equivalent. Cash in hand, bank balance. Goodwill, intent. Cash bank balance दिया है students. That becomes 9. No short-term loans advances. कोई prepaid expense तो नहीं है. अदर करंट एसेट? अदर करंट एसेट स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट में है स्टूडेंट्स. अदर करंट एसेट एडजस्टमेंट में, विल सी दैट लेटर ऑन. सो नंबर 10. सो इन ऑल 10 है. 1 2, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 3, ट्रेड पेबल 4, फिक्स एसेट 5, अदर नॉन करंट एसेट 6, इन्वेंट्री 7, ट्रेड रिसीवेबल 8, कैश इक्विवेलेंट 9, अदर करंट एसेट 10. ओके, देन इनकम स्टेटमेंट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11. अदर इनकम नहीं. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इनकम नहीं है, मटेरियल्स कंज्यूम नहीं. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 12. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज 13. एम्प्लॉय बेनिफिट्स है 14. फाइनेंस कॉस्ट भी है 15. डेप्रिसिएशन हम लोग शेड्यूल नहीं बनाएंगे. अदर एक्सपेंसेस 16. सो इन ऑल 16 नोट्स. So in all 16 notes we have to draw. Authorized capital was given students. There is no adjustment में. ठीक है, so next line में लिख सकते हैं. How many reserves were given? Profit and loss था, general reserve 2, interim dividend 3, salaries, advertisement. So 1 2 3 4 5. Number 3, what we decided? Long term borrowings. एक ही लॉन्ग टर्म बोरिंग थे स्टूडेंट्स. नंबर 4 was trade payables.
नेक्स्ट नंबर 6 इज अदर नॉन ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दोनों था. नंबर 5 इज फिक्स्ड एसेट. अभी फिक्स एसेट वैसा नहीं बनाना है स्टूडेंट्स, बिकॉज हियर देयर आर नॉट मेनी एडजस्टमेंट्स. 10-11 कॉलम्स वाला नहीं बनाना है. नंबर 6 इज अदर नॉन करंट एसेट. नेक्स्ट पेज पे number 7, inventories, trade receivables, डेटर्स एंड बिल्स. डेटर्स का एडजस्टमेंट भी ना स्टूडेंट्स. हाँ, फर्दर बैड डेट्स है, कुछ गुड सेंड मैंने लिखा है आपको. ओके. नंबर 9, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Ten, other current asset. 11 is revenue from operations. 12 was, next पेज पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स में, नंबर 12, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. Changes in inventories. 14, employees benefit. 15, finance cost. 16, other expenses. Okay, we'll start with posting now students. In all 16 notes बनाना है. Okay, मैं अभी postings कर रहा हूँ. 4 lakh equity shares of ₹10 each. So issued, subscribed. 4 lakh equity shares of ₹10 each. Amount column 40 lakh. 12% debentures, long-term borrowings. 12% debenture is 30 lakh. Profit and loss account 1st April 2015 मतलब स्टूडेंट्स ओपनिंग बैलेंस. ठीक है. So profit and loss opening balance, how much it is given? 262,500. 262,500. Bills payable, trade payable. $370,000. No adjustments, outer column. Sales, revenue from operations. Inner column, उसका adjustment है स्टूडेंट्स. 41,50,000. मैंने एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स कुछ लिखा है था ना, उसका इफेक्ट्स आएगा यहाँ. जनरल रिजर्व, रिजर्व्स इन सरप्लस. No adjustments, so outer column.
Provision for doubtful debt. So this will be considered as old RDD because new RDD मैंने adjustment में आपको adjustment में दिया था students. Adjustment number 4, create provision for doubtful debts at 5% on debtors. So adjustment 4 is new RDD. तो trial balance for जो provision for doubtful debts है that becomes old RDD. We'll discuss it later on. Premises fixed asset. Premises fixed asset. Students इसका कोई adjustment नहीं दिया है premises का. How much is this? 30,72,000. 3072. Then plant and machinery. इसका they have given depreciation. Plant and machinery. Inner column because we have to charge depreciation. 33 lakh. Opening stock of finished goods, changes in inventories. Opening stock of finished goods हो या WIP हो, it is recorded here. हाँ, opening stock of materials होगा तो it goes to cost of materials consumed by students. Opening stock of finished goods, inner column 7,50,000. Debtors, trade receivables students. इसका adjustments है, so inner column में लिखना number 8 debtors 8,70,000. Goodwill पहले भी हमने किया है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाने का. दिस इज इंटैंजिबल अगेंस्ट इंटैंजिबल 2,50,000. 250 इंटैंजिबल 2,50,000. नेक्स्ट इज कैश एंड बैंक बैलेंस है ना, इट इज 4,81,500. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड बैंक बैलेंस 481,500. 481,500. Interim dividend students we subtract from P&L minus interim dividend. Interim dividend is 392,500. 392,500. Purchase of finished goods. Students here purchase of stock in trade है ना. Purchase of finished goods, inner column because इसका adjustment is students. Purchase of finished goods, what is the amount given? 1850, 18,50,000. Number 12 में लिखा मैंने. Share issue expense, other non-current asset. Number 6. Inner column, इसका भी adjustment है. 50,50. Salaries, employees benefits students. Number 14. कोई adjustment तो नहीं था ना students. Salaries 979,800. General expenses, other expenses. General expense कितना है students? 68,350. Outer column there is no adjustment. Advertisement expense, other expense students. Advertisement expenses how much it is given? 2,02,250. Students inner column में लिखो, इसका भी मैं आपको एक extra adjustment लिखाता हूँ. अच्छा रहेगा जितना एडजस्टमेंट प्रैक्टिस कर लें. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस इनर कॉलम. विल राइट इसका भी एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आपको लिखाता हूँ, अभी तक हमने किया नहीं है. ओके नेक्स्ट बैड डेट्स. नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, ये आपने 12th स्टैंडर्ड में भी किया है स्टूडेंट्स. बैड डेट्स इनर कॉलम में लिखना कितना है? 21,100 रिकॉर्डेड टू इनर कॉलम. फाइनली इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कहाँ पे आएगा? फाइनेंस कॉस्ट, इनर कॉलम. इसका हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना दिया हमको स्टूडेंट्स? 1,80,000. आई विल डिस्कस वो हिडन एडजस्टमेंट कहाँ पे. चलो अभी कर लेते हैं. 12% डिबेंचर. देखो सेकेंड आइटम फ्रॉम द टॉप. 30 लाख है स्टूडेंट्स डिबेंचर्स. 12% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट शुड बी 3,60,000 ना.
इंटरेस्ट 3,60,000 होना चाहिए, बट इंटरेस्ट गिवन टू अस इज हाउ मच 180, मतलब बैलेंस 180 इज आउटस्टैंडिंग, या इंटरेस्ट अक्रूड आप लिख सकते हैं, इंटरेस्ट अक्रूड या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। बेटर दूसरे पेन से लिखूं तो अच्छा है स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज एन एडजस्टमेंट ना, पोस्टिंग नहीं है, इसको हम एडजस्टमेंट ट्रीट कर रहे हैं। तो ग्रीन पेन से मैंने लिख दिया इंटरेस्ट अक्रूड 180, because total interest should be 3,60,000 students. Why? Debenture 30 lakh है, उसका 12% is 3,60,000, so total interest should be 3,60,000. They have given us 180, so balance 180 is outstanding. Students, इसका second effect पहले भी हमने किया है, other current liability, यह है ना other current liability. Against that, again other current liability 1,80,000. आपके रेफरेंस के लिए इंटरेस्ट अक्रूड यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा, अदर करंट लाइबिलिटी इंटरेस्ट अक्रूड ऑन डिबेंचर 1,80,000. ओके, एक इफेक्ट वहां पे ऐड किया फाइनेंस कॉस्ट में, सेकेंड इफेक्ट ईयर भी रिकॉर्ड. ओके, सो पोस्टिंग्स डन स्टूडेंट, सारी पोस्टिंग्स हो गई. एडजस्टमेंट नंबर 1, ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. ठीक है, सो ऑथराइज कैपिटल लिखो, ऑथराइज में लिखेंगे हम लोग 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10, अमाउंट कॉलम 50 लाख. नेक्स्ट क्या है, सेकेंड इफेक्ट, राइट ऑफ 10% ऑफ शेयर इश्यू एक्सपेंस. स्टूडेंट शेयर इश्यू एक्सपेंस यहाँ पे राइट ऑफ माइनस करो, नंबर 6 में, नोट नंबर 6 में राइट ऑफ, कितना उन्हें राइट ऑफ करने का है 10%, सो 50,000 का 10% विल बी 5,000. ओके, सो आउटर कॉलम 50 माइनस 5 विल बी 45. सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स, इसको अदर एक्सपेंस में भी लिख सकते हैं, विल गेट बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. हियर आई एम राइटिंग कौन क्या, शेयर इश्यू एक्सपेंस रिटर्न ऑफ 5,000 था ना स्टूडेंट्स, 50,000 का 10%. सो वन इफेक्ट नोट नंबर 6 में हमने माइनस किया. ओके, सेकेंड इफेक्ट ईयर भी रिकॉर्ड. ओके स्टूडेंट्स, अदर एक्सपेंस में, सो आई एम राइटिंग यहाँ पे आपके लिए इफेक्ट्स लिख देता हूँ. दिस वॉज एडजस्टमेंट नंबर क्या था 2. एडजस्टमेंट 2 व्हाट वी डिड, लेस फ्रॉम शेयर इश्यू एक्सपेंस, वहां पे हमने माइनस किया. एंड व्हाट सेकेंड इफेक्ट वी गिव, रिकॉर्ड अंडर अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में सेकेंड इफेक्ट. सो दीज आर द 2 इफेक्ट्स. So this was adjustment number 2. Number 3, stock of finished goods on 31st March is 9,50,000. Changes in inventories. Closing stock of finished goods. अभी नेट आंसर हम लोग नहीं फाइंड करेंगे, बाद में करते हैं स्टूडेंट्स. 9,50,000. सेकेंड इफेक्ट इन्वेंट्रीज में आएगा स्टूडेंट्स, नंबर 7 है ना हमारा, यहाँ पे stock of finished goods 9,50,000. ओके, तो सिंपल सा एडजस्टमेंट था. दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर 3. कहाँ लिखा हमने, पहला इफेक्ट चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ऑल्दो इट्स अ सिंपल एडजस्टमेंट, फिर भी मैं लिख देता हूँ इन्वेंट्रीज. एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज में लिखा हमने. These are the 2 effects. This was adjustment number 3. Create provision for doubtful debts at 5% on debtors. Students वो बाद में करेंगे, because debtors के और भी adjustment, we'll do that first. Provide 1,80,000 for income tax. पहले भी मैंने किया है. Provide provision for tax for the current year. कितना कहा उन्होंने, 1,80,000. 1,80,000 against provision for tax current year. This is the first effect, 1,80,000. Okay, then second effect students, short term provisions. ये है ना हमारा short term provisions, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ
शॉर्ट टर्म, हमने उसका नोट नहीं बनाया है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एडवांस टैक्स तो है नहीं. सो वन इफेक्ट इट गोज टू P&L स्टेटमेंट यहाँ पे. सेकेंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस बैलेंस शीट. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट्स, 5 था या. सो वन इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लिखा हमने, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे लिखा हमने, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. लास्ट नंबर 6, एक्चुअली आगे 7, 8, 9 भी है एडजस्टमेंट. डेप्रिशिएट प्लांट मशीनरी एट 15%, सो माइनस फ्रॉम प्लांट मशीनरी. नोट नंबर 5 में फिक्स्ड एसेट में 15% 33 लाख पे चार्ज करेंगे. $495,000 माइनस 33 लाख, सॉरी 28,05,000, 2805. ओके. सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का स्टूडेंट्स, इनकम स्टेटमेंट, ये हमारा इनकम स्टेटमेंट है. अगेंस्ट दैट ये डेप्रिसिएशन है, उसके अगेंस्ट में हाउ मच वी गॉट, 4,95,000 अगेंस्ट डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. ठीक है, 495 डन. वन एंड सेकेंड इफेक्ट इन इनकम स्टेटमेंट. तो ये सिंपल से एडजस्टमेंट है, इसका मैं कोई नोट नहीं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स. हो गया. अभी नंबर 7, राइट ऑफ फर्दर ₹10,000 एज बैड डेट्स. डेटर्स में जाओ. डेटर्स कहाँ था स्टूडेंट्स, इन्वेंट, ये सॉरी ट्रेड रिसीवेबल माइनस, इसको हम लोग न्यू बैड डेट्स कहते हैं या फर्दर बैड डेट्स. कितना का है, राइट ऑफ फर्दर 20,000. सो एक इफेक्ट डेटर्स से माइनस किया. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स में नंबर 8 में. देन स्टूडेंट सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे ऐड करते थे. अगर आपको 12th स्टैंडर्ड आपका याद हो, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी. दैट सेम थिंग वी आर फॉलोइंग स्टूडेंट्स, कुछ नया नहीं कर रहे हैं. सो वन इफेक्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेटर्स, सेकेंड इफेक्ट हमने यहाँ लिखा. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर क्या लिखा है था मैंने, 7, लेस फ्रॉम डेटर्स. एंड सेकेंड इफेक्ट हमने कहाँ लिखा स्टूडेंट्स, इसको अदर एक्सपेंस में लिखा है. सेकेंड इफेक्ट ये अदर एक्सपेंस में लिखा है. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 8, गुड्स वर्थ 50,000, कॉस्ट प्राइस 40,000, सेंट ऑन रिटर्न बेसिस इज ट्रीटेड एज सेल्स. स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट नंबर क्या है, 8 है. अभी ध्यान से, रिटर्न बेसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सिंपल मीनिंग, आपने कस्टमर को गुड्स भेजा है एंड व्हाट यू हैव सेड, अगर आपको अच्छा लगेगा तो यू कीप इट, अगर आपको पसंद नहीं है तो वापस करना. दैट इज सिंपल मीनिंग ऑन रिटर्न बेसिस, है ना. सो कंपनी ने द गुड्स बेचा, उसको कस्टमर को भेज दिया. ओके, एंड व्हाट द कंपनी सेड, इफ यू लाइक इट देन यू कैन कीप इट, अदरवाइज अगर आपको पसंद नहीं आया तो रिटर्न कर देना. तो स्टूडेंट्स इन सच अ केस ना व्हाट हैपेंस, तो ये सेल्स नहीं माना जाएगा स्टूडेंट्स, अनलेस एंड अंटिल द कस्टमर कंफर्म्स. जब तक कस्टमर की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आ जाता कि मुझे पसंद है, up till that day ना you can't treat it as sales. आगे समझ में, once again गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस का सिंपल मीनिंग क्या होता है, कस्टमर को गुड्स देना है एंड व्हाट यू से कि आपको पसंद आएगा तो इन्फॉर्म करना, यू कैन कीप इट, नहीं पसंद आएगा तो वापस कर देना. दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ रिटर्न बेसिस. नाउ इन सच केसेस व्हाट हैपेंस, अनलेस एंड अंटिल द कस्टमर कंफर्म्स दैट, ओके, कस्टमर जब तक कंफर्म नहीं करेगा मुझे पसंद आ गया, up till that day ना never treated as sales. जिस दिन वो कंफर्म कर देगा ना then it becomes a sale for us. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इट्स नॉट, अभी तक सेल नहीं है हमारे लिए, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेल नहीं है और उसने क्या किया, इट वाज ट्रीटेड एज सेल्स, तो माइनस करेंगे सेल से. कहाँ है सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस. अच्छा, वहां पे देखो सेलिंग प्राइस भी दिया है, कॉस्ट प्राइस भी, बट सेल्स तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है, और सेलिंग प्राइस कितना है स्टूडेंट्स, 50,000 है, तो यहाँ पे 50,000 माइनस होगा. अच्छा, इफ यू हैव ट्रीटेड एज सेल्स, सो डेफिनेटली आपने उसको डेटर्स में इंक्लूड किया होगा स्टूडेंट्स, सो डेटर्स से माइनस होगा गुड्स ऑन
रिटर्न बेसिस। जब आपने उसको सेल्स ट्रीट किया है, उसने पैसा तो दिया नहीं है अभी तक, ऐसा तो लिखा नहीं है कि कस्टमर पेड मनी, सो दैट मीन्स ये क्रेडिट सेल्स था, तो क्रेडिट सेल्स था तो मतलब डेटर्स में भी इसका इफेक्ट गया होगा ना। एंड हाउ मच यू मस्ट सबट्रैक्ट अगेन 50,000, है ना। डेटर्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे होता है ना, यू सेल गुड्स टू कस्टमर्स ऑन क्रेडिट बेसिस, तो जब भी सेल करते हैं तो सेलिंग प्राइस पे करते हैं। तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस you can treat it as sales only when the customer confirms। कस्टमर की तरफ से कंफर्मेशन आएगा तो आपके लिए सेल है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक वो सेल नहीं माना जाता है स्टूडेंट्स। सो इट वाज ट्रीटेड एज सेल्स, वहां पे लिखा है, तो मैंने सेल्स से माइनस किया, और क्या माइनस करने का, सेलिंग प्राइस। सेम वे डेटर्स से माइनस किया सेलिंग प्राइस। अच्छा, बट गुड्स अभी उसने कंफर्म नहीं किया। अच्छा, इसका मीनिंग क्या, वो स्टूडेंट्स कंफर्म नहीं किया तो मतलब उसका ओनरशिप, उसका रिस्क रिवॉर्ड अभी तक कंपनी के ही पास है, सो इट बिकम्स अ स्टॉक फॉर द कंपनी। वो कंपनी के लिए क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री स्टूडेंट्स। सो एक इफेक्ट यहाँ पे आएगा, विल राइट स्टॉक विथ कस्टमर्स या क्लाइंट, जो भी आपको वर्ड लिखना होगा, कस्टमर्स। बट स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, और कॉस्ट प्राइस उसका कितना दिया है, 40,000। सो एक इफेक्ट यहाँ पे आया इन्वेंट्रीज। नेक्स्ट आएगा चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में, स्टॉक विथ कस्टमर्स। आपके लिए एक तरह का ये क्लोजिंग स्टॉक ही है। व्हाई इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक, वंस अगेन आई रिपीट, कस्टमर में कंफर्म तो नहीं किया ना, जब गुड्स आपके पास से चला गया है, नो डाउट अबाउट दैट, वो पड़ा कस्टमर के पास है, इट्स लाइंग विद द कस्टमर स्टूडेंट्स, बट अभी तक उसने कंफर्मेशन नहीं दिया। सो कंफर्मेशन नहीं देने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अभी भी आप वो गुड्स के ओनर हो, ऑल्दो गुड्स आपके पास नहीं है, आपके गोडाउन में नहीं है, गुड्स आर लाइंग विद द कस्टमर, बट उसका रिस्क रिवॉर्ड जो भी है वो अभी भी आपके पास है, आप उसके ओनर हो स्टूडेंट्स अभी भी, अनलेस एंड अनटिल द कस्टमर गिव्स कंफर्मेशन। अगर वो कंफर्मेशन दे देता है मुझे गुड्स पसंद है, तो फिर आप ओनर नहीं रहोगे, देन विल बी ट्रीटेड एज सेल्स। नाउ कस्टमर ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया है, तो इट्स नॉट अ सेल फॉर यू, तो सेल से माइनस किया, डेटर्स से माइनस किया, एट सेलिंग प्राइस, ठीक है स्टूडेंट्स। बट गुड्स के मालिक आज भी आप हो, तो आप मालिक हो, तो दैट मीन्स इट बिकम स्टॉक फॉर यू। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा स्टॉक विद कस्टमर्स 40, एंड यहाँ पे लिखा स्टॉक विद कस्टमर्स नंबर 7 में 40। सो 7 में भी आया, 13 में भी आया। सो व्हाट आर द इफेक्ट स्टूडेंट्स, सेल से माइनस किया, डेटर्स से माइनस किया, नंबर 7 में लिखा है, नंबर 13 में। So I'm recording here students. Adjustment number 8. What we did? Less from sales at selling price. एक इफेक्ट ये दिया. Then less from debtors. Again students at selling price किया. थर्ड इफेक्ट क्या किया हमने? Recorded under inventories. Inventories मतलब वो नोट नंबर 7 बैलेंस शीट में at cost price. And what we did? Changes in inventories. क्योंकि इन्वेंट्री स्टॉक होता है, स्टॉक हमेशा कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, सो कॉस्ट प्राइस लेस है ना, 50,000 40,000। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, सो दीज आर द, इसके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट लिखा है, अभी तक हमने किया नहीं था स्टूडेंट्स। ओके, सो सेल से माइनस किया हमने एट सेलिंग प्राइस, डेटर से माइनस किया एट सेलिंग प्राइस, नंबर 7 इन्वेंट्रीज में लिखा स्टॉक विद कस्टमर, एंड 13 में लिखा स्टॉक विद कस्टमर्स। So these are the 4 effects for adjustment number 8. Then adjustment number 9, goods destroyed 50,000, claim accepted 30,000. So जब भी goods destroyed लिखा है तो students minus from purchases. Goods destroyed, कितने का destroyed हुआ, कितना लिखा, 50,000 50. Okay students, गुड्स डिस्ट्रॉयड हो गया। अच्छा, आपको देखो, आप ऐसा करते थे स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, ऐसा आप ट्रेडिंग पीएनएल टी फॉर्म में बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड क्रेडिट साइड पे लिखते थे ना, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड 50,000, ठीक है। बट स्टूडेंट्स यहाँ डेबिट क्रेडिट तो नहीं है, परचेज इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग, है ना, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता था ना, अब यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं है स्टूडेंट्स। सो व्हाट आई डिड, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन क्रेडिट साइड, बिकॉज क्रेडिट साइड पॉसिबल नहीं है, ये वर्टिकल स्टेटमेंट है, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, तो क्रेडिट साइड तो पॉसिबल नहीं है, तो उसकी जगह हमने क्या किया, हमारे परचेज से माइनस कर लिया उसको, गुड्स डिस्ट्रॉयड। बट इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा ऑब्वियसली। अच्छा, सेकेंड इफेक्ट आप लोग क्या करते थे, फिर पीएनएल में लिखते थे स्टूडेंट्स, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड, टू गुड्स लॉस बाय फायर या लॉस ड्यू टू थेफ्ट, जो भी लॉस होता था वो लिखते थे। एंड स्टूडेंट्स कोई इंश्योरेंस होता था तो बाय इंश्योरेंस क्लेम,
ऐसे लिखते थे ना. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. बट स्टूडेंट्स अभी ये वर्टिकल स्टेटमेंट है, तो वर्टिकल स्टेटमेंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता है. सो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट होता था हमने उसको क्या किया, परचेज से माइनस कर लिया 50,000. आगे समझ में यहाँ तक स्टूडेंट्स. देन व्हाट टू डू नेक्स्ट. देन गो टू अदर एक्सपेंसेस. अदर एक्सपेंस कहाँ पे है हमारा, ये है ना, यहाँ पे स्पेस है नीचे, शेयर इश्यू एक्सपेंस. गुड्स डिस्ट्रॉयड. कितने का डिस्ट्रॉयड हुआ स्टूडेंट्स, 50,000 का. और क्लेम कितना एक्सेप्ट किया अभी तक उन्होंने, 30,000 एक्सेप्ट किया ना स्टूडेंट्स. सो -30 ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं. सो 50 - 30 आउटर कॉलम आई विल राइट 20,000. अगेन आई विल रिपीट. जब आप पीएनएल बनाते थे यहाँ पे लिखोगे गुड्स लॉस 50,000 और यहाँ पे लिखोगे बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 30. ऐसा आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा होगा स्टूडेंट्स. ओके, डेबिट साइड पे पीएनएल में लॉस, जितना गुड्स का नुकसान हुआ, और इंश्योरेंस क्लेम अगर मिलने वाला है तो क्रेडिट साइड पे इट्स अगेन इनकम फॉर यू. सो नेट कितना हुआ, 50 माइनस ये 50 डेबिट है, 30 क्रेडिट है, तो नेट एक्चुअली आर रिकॉर्डिंग ओनली 20,000. दैट्स व्हाट आई हैव डन हियर स्टूडेंट्स. यहाँ देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड 50 - 30 20,000. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का सिस्टम नहीं है, इसके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा. सो वन इफेक्ट व्हाट वी डिड स्टूडेंट्स, परचेज है ना, उसमें से माइनस किया हमने गुड्स डिस्ट्रॉयड 50, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस है वो माइनस करने का. देन सेकेंड इफेक्ट अदर एक्सपेंस में गुड्स डिस्ट्रॉयड, नेट आंसर लिखने का, जो क्लेम मिलने वाला है उसको रेड्यूस कर दो. सो नेट लॉस जो हुआ आपका 20,000 का हुआ. एक और इफेक्ट आएगा, विल गो टू अदर करंट एसेट. नंबर 10 है ना, अदर करंट एसेट, विल राइट इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल, या रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, रिसीवेबल या रिकवरेबल. हाउ मच इंश्योरेंस क्लेम है, 30,000. तो 12th स्टैंडर्ड में आपने ऐसा सीखा होगा, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट पीएनएल में गुड्स लॉस, क्रेडिट साइड इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, और एसेट में भी आप लिखते थे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. तो दैट्स व्हाट आई हैव डन. बट अगेन आई रिपीट, यहाँ डेबिट क्रेडिट नहीं है, परचेज से माइनस करो. अदर एक्सपेंस पे नेट लिखो, नेट नुकसान मतलब जितने का गुड्स लॉस हुआ माइनस द इंश्योरेंस क्लेम विच इज एक्सेप्टेड. सो नेट लॉस इज 20,000. एंड फाइनली द थर्ड इफेक्ट, अदर करंट एसेट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल. नंबर 10 में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 30,000. दीज आर द इफेक्ट्स फॉर दिस एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स. ठीक है. सो स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट नंबर 9 था जो मैंने एक्स्ट्रा लिखाया था. व्हाट वी डिड, लेस अगेन, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स एक बार सॉल्व हो गया ना स्टूडेंट्स, सो यू मस्ट नो कौन से एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ गया था. लेस फ्रॉम परचेज ऑफ स्टॉक. सेकेंड इफेक्ट हमने लिखा था अदर एक्सपेंसेस, और नेट आंसर लिखा था हमने, है ना, 50 - 30. एंड थर्ड इफेक्ट हमने कहाँ लिखा स्टूडेंट्स, अदर करंट एसेट. ये 3 इफेक्ट हमने दिए हैं. परचेज से माइनस, गुड्स डिस्ट्रॉयड यहाँ पे लिखा अदर एक्सपेंस में, एंड स्टूडेंट्स अदर करंट एसेट में 30,000. सो दीज आर द इफेक्ट्स फॉर दिस एडजस्टमेंट नंबर 9. अब स्टूडेंट देखो, कुछ आइटम्स मैंने ट्रायल बैलेंस में एक आइटम छोड़ा था और एक एडजस्टमेंट नंबर 5 छोड़ दिया था, सॉरी नंबर 4. तो अभी वो सॉल्व कर रहा हूँ. नंबर 4 पहले सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स. ओके, नंबर 4 स्टूडेंट्स देखो, नंबर 4 क्या था, क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स. इसको न्यू आरडीडी कहते हैं. तो स्टूडेंट्स एक मिनट, पहले हम लोग नेट आंसर फाइंड करते हैं, क्योंकि न्यू आरडीडी हमेशा नेट अमाउंट पे होता है ना. 8,70,000 - 20 फर्दर बैड डेट्स माइनस गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस. सो 8 लाख नेट आंसर है. इसके ऊपर आपका फर्दर आरडीडी जिसको कहते हैं या न्यू आरडीडी चार्ज होगा. हाउ मच दे हैव सेड, 5%. सो 8 लाख का 5% विल बी 40,000. सो आउटर कॉलम विल बी 7,60,000. इसके लिए मैंने वो एडजस्टमेंट जब भी सॉल्व नहीं किया था, बिकॉज न्यू आरडीडीज चार्ज ऑन नेट डेटर्स. नेट मतलब उससे और भी कोई एडजस्टमेंट है डेटर्स का, तो पहले वो सब सॉल्व कर लो, उसके बाद लास्ट में न्यू आरडीडी चार्ज करने का स्टूडेंट. सो न्यू आरडीडी हियर आई रिकॉर्डेड. सेकेंड इफेक्ट अगेन 12th स्टैंडर्ड में आपने किया, बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी. सॉरी एडजस्टमेंट है ना, तो आई मस्ट राइट विद ग्रीन पेन से लिखो. न्यू आरडीडी कितना आया हमको, 40,000. स्टूडेंट्स अभी ट्रायल बैलेंस में चाहो देखो, वहां भी था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 35,000, दैट इज ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी आप लोग सबट्रैक्ट करते थे.
ये सब आप कहाँ लिखते थे, P&L में डेबिट साइड में लिखते थे, बट हियर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है तो उसकी जगह पे मैंने अदर एक्सपेंस में लिखा, बट सेम ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने आपके 12th स्टैंडर्ड में सीखा ही है. सो बैड डेट्स 21,100 प्लस फर्दर बैड डेट्स 20 प्लस न्यू RDD 40 माइनस ओल्ड RDD 30. सो नेट आंसर इज 46,100. सो न्यू RDD हमने क्या किया, पहले डेटर्स का नेट आंसर फाइंड किया, उसके ऊपर चार्ज किया न्यू RDD, एंड सेकेंड इफेक्ट अदर एक्सपेंस में ऐड. और ये ओल्ड RDD मैंने जब ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग्स कर रहा था ना, आई हैड इग्नोर्ड एट दैट स्टेज, और मैंने कहा था बाद में लिखूंगा. सो नाउ आई रिकॉर्डेड. डन स्टूडेंट, दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर. ये तो सिंपल एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं इसका कोई नोट नहीं लिख रहा हूँ. ठीक है. सो ऑल पोस्टिंग्स डन, ऑल एडजस्टमेंट्स डन, कुछ नहीं बचाना स्टूडेंट्स. सो वी स्टार्ट विद क्लोजिंग. पहला क्लोज क्या करते हैं, ऐसे नोट्स जो P&L से रिलेटेड है. तो P&L कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो 41,50,000 माइनस 50,000, सो इट इज 41 लाख. सो 41 लाख ही टोटल रहेगा इसका. देन नेक्स्ट पेज पे परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स 18,50,000 माइनस 50, आउटर कॉलम विल बी 18 लाख. सो टोटल भी सेम रहेगा इसका 18 लाख. ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स 7,50,000, अभी ये माइनस करना है. क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से माइनस होता है, तो 750 माइनस 950 एंड माइनस 40. सो ये नेगेटिव है स्टूडेंट, ध्यान रखना, नेगेटिव 2,40,000. सो टोटल भी इसका नेगेटिव 240 ही रहेगा. ईयर सैलरीज एक ही था, 979,800. यहाँ भी एक ही है, 3,60,000. अदर एक्सपेंस ध्यान से 68,350 प्लस 46,100, 5 and 20. So total of other expenses 139,450. 139,450. अब ये सब टोटल्स हम लोग कहाँ लिखेंगे स्टूडेंट्स, P&L में. ट्रेड रिसीव 41 लाख इज इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 41 लाख. अदर इनकम तो नहीं था स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट पेज पे आ जाएं. नंबर 12 परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 18 lakhs. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव ही लिखेंगे इसको, 2,40,000. नंबर 14 was 979,800. 15 is 3,60,360. Number 15. Other expenses 139,450. So 41 lakh plus 0 will be 41 lakh. Then 18 lakh minus 2,40,000 plus 979,800 plus 3,60,000 plus 495,000. 139,450. So total is 35,34,250. 41 lakh 35,34,250. 6,65,750. 665,750 minus provision for tax minus होता है. So final answer is 485,750. This is our profit and loss statement. फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहाँ जाता है स्टूडेंट्स, दिस आंसर फाइनली इट गोज टू रिजर्व्स इन सरप्लस, यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 485,750. अभी ये सब टोटल करते हैं, प्लस 262,500. इंटरिम डिविडेंड माइनस होता है, माइनस 392,500. दिस 355,750. अभी बैलेंस शीट के नोट्स का टोटल करेंगे. दिस इज 40 लाख, दिस इज 2,50,000 प्लस 355, सो इट कम्स टू 6,05,750 रिजर्व्स. ये सेम रहेगा 30 लाख. दिस इज हाउ मच, 3,70,000 और ये कितना 4 लाख, तो 770. नीचे 30,72,000 है ना premises plus 2,805,000. So 58,77,000 fixed asset.
शेयर इशू एक्सपेंस 45,000, ये कितना 9,50,000 प्लस 40 9,90,000। अच्छा ये मैंने फाइन नहीं किया, हाँ फाइन किया 7,60,000। देन 481,500, finally 30,000. So all these amounts can be recorded in balance sheet. 40 lakh, 6 lakh 5,750, so it will be 46 lakh 5,750. No long term borrowings था ना, 30 lakh था, so outer column 30 lakh. Then क्या था डायरेक्टली, ट्रेड पेबल 7,70,000, 770, 180 and again 180, so it is 1130, 1130 plus 30 lakh 4,605,750, 87 lakh 35,750. फिक्स एसेट कितना आया था 58 lakh 77,000. Number 6 was 45,000. Other non-current asset 45,000. This is 9,90,000. Inventories 990, 9,90,000. Number 8 is 7,60,000. Number 9 481,500. Last number 10 30,000. 5877 plus 2,50,000 plus 45. 5877 plus 2,50,000 plus 45. 61,72,000. 9,90,000. 7,60,000. 481,500 and 30,000. 2261,500, 6172,000. फिर डिफरेंस आ गया 84,33,500, भूल गया कुछ 87,35,750, 3,02,250. इतना ह्यूज डिफरेंस कैसे आ गया? लेट मी चेक स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, वो टैली क्यों नहीं हो रहा था? देखो मैंने एक्चुअली ये टोटल में लेना भूल गया, मैंने ये इनर कॉलम में लिखा ना, when I did this total ना, तो इसको भूल गया. हाँ, एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ना मैंने कहा था इसका एक मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा, विल रिकॉर्ड एन एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट. अभी तो वो एडजस्टमेंट जाने दो स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट लिखूंगा उसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ आएगा, ये भी चेंज करना पड़ेगा. सो लेट इट बी. वो एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, आई वाज गिविंग यू एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा. अच्छा, व्हाट मिस्टेक आई मेड स्टूडेंट्स, क्यों टैली नहीं हो रहा था? This 2,02,250 was not considered when I take this total of other expenses. जब मैंने इसका टोटल किया था ना, when I took the total for this column, I forgot to take this because ये इनर कॉलम में था. तो स्टूडेंट्स अभी मैं इसको कैंसिल करके आउटर में ही लिख देता हूँ. इसके लिए हमारा ये टैली नहीं हो रहा था. 202250 और बाकी और कहीं तो कुछ नहीं था ना. ओके, तो स्टूडेंट्स अभी करते हैं. So this was 68,350 plus 202250, 46,100, 5,000. Last वाला 20,000 है. So total comes to 341,700. Other expense का total is 341,700. 341,700. So that total will go to P&L. यहाँ जाएगा 341,700. तो सारे एडजस्टमेंट्स कर रखते हैं. एडजस्टमेंट में कोई मिस्टेक नहीं किया स्टूडेंट्स. अगेन वो टोटल में मैं हमेशा गड़बड़ कर जाता हूँ. वो आई फॉरगॉट टू कंसिडर दैट आइटम स्टूडेंट्स. 18 लाख माइनस 2,40,000 प्लस 979,800 प्लस 3,60,000 प्लस 495,000 प्लस 341,700. सो टोटल इज 37,36,500. 37,36,500. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा. 41 लाख माइनस 37,36,500, 3,63,500. 180 प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस कर देंगे. सो फाइनल आंसर 183,500. दिस विल गो टू बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट्स ये टोटल मैंने गलत लिखा था, दिस टोटल. तो
दिस वाज एक्चुअली 341. अदर एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस मैंने इनर कॉलम में लिखा, उसको आउटर में लिखना चाहिए था. एक्चुअली आई वांटेड टू गिव एन एडजस्टमेंट फॉर दैट. अभी वो एडजस्टमेंट मिस हो गया, मैंने दिया नहीं स्टूडेंट, तो जाने दो उसको. नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर लूंगा वो फ्री सैंपल्स का एडजस्टमेंट. ठीक है, सो आई रिकॉर्डेड हियर. फिर ये टोटल 341,700. ओके, सो अभी रिजर्व्स में जाके चेंज रिजर्व्स हियर, ये चेंज हो जाएगा. हाउ मच वी गॉट? हाँ 183 मैं लिख चुका था, 183,500. सो एंड आई हैव रिकॉर्डेड, ये लिख दिया मैंने 53,500 प्लस 262,500 माइनस 392,500. सो इट इज 53,500 प्लस 2,50,000. सो इट इज 303,500 इज रिजर्व्स. ओके, सो मैं टोटल में गड़बड़ कर गया. सो दिस बिकम्स 303,500. 303,500. Okay, so 40 lakh add कर लो. So it comes to 43,03,500 plus 30 lakh plus 11,30,000. It comes to 84,33,500. इतना ही टोटल हमको एसेट का आया था. 84,33,500 टोटल हमको एसेट का ही था. 84,33,500. सो अगेन स्टूडेंट्स, क्यों टैली नहीं हो रहा था? एडजस्टमेंट सब करेक्ट है, इफेक्ट्स भी करेक्ट है. ईयर या एडवर्टीजमेंट आई रिकॉर्डेड इन इनर कॉलम एंड आई सेड आई विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट. मैं भूल गया स्टूडेंट्स वो, तो नाउ आई ट्रांसफर्ड इट टू आउटर कॉलम. तो टोटल ऑब्वियसली चेंज होगा, बिकॉज मैंने डिड दिस टोटल, तो ये मिस कर गया था ना, तो अभी इसको आउटर कॉलम में लिखा, टोटल किया. सो नाउ इट इज 341,700 अदर एक्सपेंस. सो वो अदर एक्सपेंस यहाँ पे लिखा 341,700. देन वापस से कैलकुलेशन, वापस से टोटल्स कर लिया मैंने. सो दिस इज योर P&L स्टेटमेंट. फाइनल आंसर 183,500 गोज टू रिजर्व्स. ये रिजर्व्स का आएगा टोटल. एंड देन 3,03,500. फिर ये बैलेंस शीट में लिखा 3,03,500. सो इसमें 3 एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट मैंने दिया था स्टूडेंट्स, बिकॉज वी हैव नॉट डिस्कस ना, अभी तक नहीं किया था. ऐसे एक वो फ्री सैंपल का एडजस्टमेंट, 1-2 एडजस्टमेंट और स्टूडेंट्स. आई विल गिव दोज एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स आल्सो जब आगे क्वेश्चन करेंगे. ओके, we are solving now students April 2003. April 2003 solve कर रहे हैं. Following the trial balance of Raul Limited as on 31st March 2002. Figures in 1000, rupees in 1000. Landed cost वो 110 का मतलब it is 1,10,000. Plant machinery 385. Plant fixed asset, plant machinery fixed asset. Debtors, trade receivable. Stock on 31st March 2002 मतलब closing stock. So this will go to balance sheet, inventories, bank cash and cash equivalent. Material consumed, cost of material consumed. Factory expenses, other expenses. Administration expense, other expense. Selling expense, other expense. Debenture interest, finance cost. Interim dividend paid will subtract from P&L. Equity share capital, 10% debentures, long-term borrowings, general reserve, reserves and surplus, P&L, reserves and surplus, securities, premium, reserves and surplus, sales, revenue from operation, creditors, trade payable, provision for depreciation on machinery, suspense account, definitely उसका adjustment होगा. TDS payable, other current liability. TDS payable will be other current liability. Authorized capital of the company is 30,000 shares of 10 each. On 31st March 2002, company issued 1 bonus share for 3 shares held by utilizing securities premium fully and balance from general reserve. So students, bonus issue किया तो share capital बढ़ जाएगा, तो put a mark on share capital.
Utilizing security premium, put a mark on security premium. And balance from general reserve, put a mark on general reserve. So this adjustment will have an effect on share capital, general reserve and security premium. No entry relating to this has yet been made. अभी तक कोई इफेक्ट नहीं दिया है तो हमको देना पड़ेगा. Company on the advice of independent valuer wishes to revalue land at 1,80,000. Put a mark on land. Proposed final dividend. We always just write a note for this final dividend. Provision for tax to be made 30,000. Transfer to reserve 15,000, including statutory reserve. Okay. Suspense account. So put a mark on suspense account. ऊपर trial balance था ना, उससे related है. Suspense account of rupees 2,000 represent cash received for sale of some machinery on 1st April 2001. Cost of machinery was 5,000 and accumulated depreciation thereon was 4,000. So suspense और मशीनरी की बात कर रहा है. पुट ए मार्क ऑन मशीनरी ऑल्सो. पहले भी हमने ऐसे एडजस्टमेंट किया है स्टूडेंट्स. Depreciation is to be provided on plant machinery at 10% on cost. Debtors include 6,000 outstanding for more than 6 months. ठीक है. Prepare profit and loss and balance sheet. So again पहले हम लोग statement decide करेंगे कौन कौन सा statement हमको बनाना है स्टूडेंट्स. So for that शेयर कैपिटल तो पक्का बनाना है. रिजर्व्स एंड सरप्लस भी है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स था. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं था. ट्रेड पेएबल स्टूडेंट्स. कोई क्रेडिटर्स आया था हमारे सामने? आई डोंट थिंक सो. हाँ था सॉरी क्रेडिटर्स भी था. सो दैट बिकम्स नंबर 4. अदर करंट लाइबिलिटी भी था. टीडीएस पेएबल. शॉर्ट टर्म प्रोविजन यस नंबर 6 हो जाएगा. फिक्स एसेट 7. कोई इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स? प्लांट मशीनरी, डेटा, स्टॉक, बैंक, फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं. कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है. नो लॉन्ग टर्म एडवांसेस. एनी अदर नॉन करंट एसेट नहीं. देन इन्वेंट्रीज है. हाँ इन्वेंट्रीज था. दैट बिकम्स नंबर 8. ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स नंबर 9. कोई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था. लैंड एट कॉस्ट, डेटर्स, बैंक नंबर 10. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है. अदर करंट एसेट भी नहीं है. नहीं ना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 11. अदर इनकम आई डोंट थिंक सो कोई अदर इनकम था. नहीं अदर इनकम आएगा स्टूडेंट्स. आएगा एडजस्टमेंट में है स्टूडेंट्स. सॉरी दिस विल कम. सो नंबर 12. कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स था. नंबर 13. मटेरियल कंज्यूम दिया था ना हमको. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है स्टूडेंट्स. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज उसके लिए ओपनिंग क्लोजिंग दोनों आना चाहिए. दस क्लोजिंग इज गिवन. एम्प्लॉयज बेनिफिट मतलब सैलरीज नो 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 नो. देन फाइनेंस कॉस्ट था. कोई डिबेंचर इंटरेस्ट था स्टूडेंट्स. दैट बिकम्स 14. अदर एक्सपेंस विल बी 15. सो इन ऑल 15 नोट्स वी हैव टू ड्रॉ. Sorry. And they've said rupees in 1,000. तो आप भी ऐसा लिखना. Rupees in 1,000. Okay. Number 1. शेयर कैपिटल ऑथराइज भी दिया है स्टूडेंट्स हमको. Issued, subscribe, paid up. Then next number 2 हमने डिसाइड किया था रिजर्व्स ना. या नंबर 2 वाज रिजर्व्स एंड सरप्लस. कौन कौन सा रिजर्व्स था स्टूडेंट? एक
P&L था, जनरल रिजर्व था, सिक्योरिटी प्रीमियम था और एडजस्टमेंट भी थे. 7-8 लाइन्स रखते 1 2 3 4 5 6 7 8. Number 3 was long term borrowings. एक डिबेंचर खाली दिया है. नंबर 4 ट्रेड पेएबल्स. ओनली क्रेडिटर्स इज गिवन ना, बिल्स पेएबल तो नहीं है. नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटी थी. अदर करंट लाइबिलिटी था. हाँ, टीडीएस पेएबल था. अदर करंट लाइबिलिटीज. Number 6 is short-term provisions. Short-term provisions. 7 fixed assets. Students, मैंने वो previous page पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया मैंने. 7 is fixed asset. Gross block का मतलब होता है cost. Opening, addition, deduction, closing. Next होता है depreciation. Again opening, addition, deduction, closing. Net block means written down value. Opening, closing. Next number 6 7 हो गया. 8 क्या था? Trade receivables. सिर्फ डेटर्स था ना, यानी कि एडजस्टमेंट था कि ड्यू फॉर मोर देन 6 months. ओके. 9 8 वाज इन्वेंट्री. स्टूडेंट सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अभी मैं ऐसा कर दूँ. दिस इज 9 एंड दिस इज 8. आई एम सॉरी. 8 वाज इन्वेंट्रीज. 8 वाज इन्वेंट्रीज. नहीं तो ये पूरा कैंसिल करना पड़ेगा. सो 8 इन्वेंट्रीज देन 9 ट्रेड रिसीवेबल्स. Number 10 was cash and cash equivalent. एक ही था बैंक, एक ही बैंक था बस. Number 11 was revenue from operations. Number 12 other income. Cost of materials consumed. 14 finance cost. डिबेंचर इंटरेस्ट था ना फाइनेंस कॉस्ट में. लास्ट 15 अदर एक्सपेंसेस. सो इन ऑल 15 नोट्स वी हैव टू ड्रॉ. पोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं. लैंड एट कॉस्ट. स्टूडेंट्स, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल में यहाँ मैंने बनाए लैंड एट कॉस्ट 110. स्टूडेंट्स, अब रुपीज इन 1000 है तो मैं भी 110 ही लिख रहा हूँ. प्लांट मशीनरी एट कॉस्ट 385. प्लांट मशीनरी 385. ओपनिंग ग्रॉस ब्लॉक. डेटर्स 46,000 है. सो ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअली वो नंबर 9 है स्टूडेंट्स. डेटर्स ऐसा लिखेंगे ड्यू फॉर more than 6 months. See what they've said. Adjustment number G. Debtors 6,000, due for more than 6 months. 6,000. So others will be. Students, sorry, हम लोग rupees in 1000 लिख रहे हैं तो ignore zeros. हाँ, sorry.
डेटर्स टोटल 46 था, सो दिस शुड बी 40, तभी तो टोटल आउटर कॉलम में 46 होगा. इट इज रुपीज इन थाउजेंड्स. स्टॉक एट कॉस्ट 31 मार्च नंबर 8 में आएगा. 31 मार्च 2002 मतलब क्लोजिंग स्टॉक. इट इज 45, इट इज 45,000, बट हम लोग 3 जीरो इग्नोर कर रहे थे. टॉप ट्रायल बैलेंस के टॉप पे उन्होंने कहा है फिगर्स इन 1000. बैंक 15, बैंक इज कैश इन कैश इक्विवेलेंट. मटेरियल कंज्यूम्ड, material consumed is how much? 150. Factory expense, other expense. Simple question है students को, इससे difficult नहीं है. Factory expense, other expense 40. Admin expense 15. Selling expense 20. Other expense. Debenture interest 5. Debenture interest students finance cost. Inner column में लिखेंगे, उसका एक hidden adjustment है, we'll solve that. Debenture interest finance cost 5. Interim dividend we subtract from P&L. तो पहले security premium, general reserve, then comes P&L. P&L का पहला ओपनिंग बैलेंस आएगा. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर माइनस इंटरिम डिविडेंड. हाउ मच इंटरिम डिविडेंड गिवन? 9. ओके, सो डेबिट साइड पूरा हो गया ट्रायल बैलेंस का. क्रेडिट साइड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच. बट स्टूडेंट्स उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है ना, तो स्टूडेंट्स सी ईयर आई एम रिकॉर्डिंग. यहाँ मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल. हाउ मच इट इज गिवन? 1,50,000. वो कुछ बोनस वगैरह है, विल सी दैट. मैंने अभी यहाँ लिखा है उसको. 10% डिबेंचर. सो स्टूडेंट्स 10% डिबेंचर इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. हाउ मच दे हैव गिवन? 100,000 मतलब 1 लाख. एंड सी दे हैव सेड सिक्योर्ड अगेंस्ट व्हाट? Secured against plant and machinery. Secured against plant and machinery 100. Students वो hidden adjustment देखो, ये debenture is 100 और actually 1 लाख है into 10%. So interest 10 होना चाहिए ना, मतलब 10,000. बट अभी तक कितना पे किया? 5. That means 5 is what students? 5 is outstanding ना, तो वो 5 आउटस्टैंडिंग अभी हम लोग ऐड करके आउटर कॉलम में फिर हम लोग लिखेंगे 10. पहले भी मैंने ऐसे एडजस्टमेंट किया है. प्लस अक्रूड इंटरेस्ट है ना, और सेकेंड इफेक्ट अक्रूड इंटरेस्ट का कहाँ आता है? अदर करंट लाइबिलिटी. अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5,000. वंस अगेन ये डिबेंचर 100 है इंटू 10%. सो इंटरेस्ट शुड बी 10,000, बट उन्होंने इंटरेस्ट हमको कितना दिया था? 5. होना चाहिए 10 स्टूडेंट्स. सो दैट मीन्स बैलेंस 5,000 इज आउटस्टैंडिंग. सो एक आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट यहाँ पे ऐड किया. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी. ओके, नेक्स्ट क्या कर रहे थे फिर हम? जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व बाद में लिखेंगे. यहाँ पे जनरल रिजर्व पहला नॉन डिविजिबल प्रॉफिट लिखते हैं ना हम लोग. जनरल रिजर्व हाउ मच दे हैव गिवन? इनर कॉलम बिकॉज उसका एडजस्टमेंट है 66 ना, 66. देन दे हैव गिवन अस प्रॉफिट एंड लॉस 35. प्रॉफिट एंड लॉस 35 inner column. Securities premium 20 inner column. Securities premium 20 inner column. Sales revenue from operation. Revenue from operation यहाँ है students. Sales 350. Creditors trade payable students. Creditors will go to trade payable. Creditors कितना है students? 25. Provision for depreciation on machinery 86. Students provision for depreciation on machinery opening में आएगा 86.
मेरी 6 ही है ना, या सस्पेंस अकाउंट बाद में सॉल्व करते हैं. लास्ट फाइनली टीडीएस पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटी. TDS payable, other current liability 6. So ये postings है. Question simple है students, कोई difficult नहीं है ऐसा. So these are the postings which we have done. और यहाँ पे भी किया है. ये working note है students. This is working note actually. ये working note है. यहाँ तक हो गया. आप करते हैं adjustment. Authorized capital of the company is 30,000 shares of 10 each. 30,000 equity shares of rupees 10 each. तो 30,000 into 10 करेंगे तो 3 लाख. एंड डबल अंडरलाइन, भूल जाओ उसको. On 31st March 2002, company issued one bonus share for 3 shares held and bonus. One bonus shares for 3 shares held. कितना नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट में जाओ. इक्विटी शेयर कैपिटल, क्रेडिट साइड, द वेरी फर्स्ट आइटम. 150 इज एक्चुअली 1,50,000 है ना, रुपीज इन 1000. फेस वैल्यू डिवाइड बाई 10. सो नंबर ऑफ शेयर्स 15,000. सो हेल्ड 15 क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको बोनस आ जाएगा. 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, सो 5,000. दिस इज द नंबर ऑफ बोनस शेयर. इसको मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं हम लोग? 10. सो मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपको क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बोनस का वैल्यू 50,000. सो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, तो प्लस आपने बोनस इश्यू किया 50 का, तो टोटल इक्विटी अभी कितना हो जाएगा? 200,000. 200,000 मतलब 2 लाख. फॉलो व्हाट आई हैव डन. 3:1 रेशियो दिया है. नंबर ऑफ शेयर्स कैसे मिला? बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में 1,50,000 डिवाइड बाई 10 गिव्स अस नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आया. नंबर को मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं? 10 करते हैं. तो वी गेट द फेस वैल्यू ऑफ बोनस. सो इट कम्स टू 50,000, बट रुपीज इन 1000 लिख रहे हैं, इसके लिए 3 0 इग्नोर किया, 50 लिखा. सो टोटल शेयर कैपिटल नाउ बिकम्स 200,000. 200,000 मतलब 2 लाख. तो स्टूडेंट्स हियर आई विल रिकॉर्ड 2 लाख divide by 10. So number of shares will be 20,000. So I will write 20,000 equity shares of rupees 10. 2 लाख. अच्छा, बोनस आपने दिया. और देखो वहां क्या लिखा था? कंपनी इशूड 1 बोनस शेयर फॉर 3 शेयर्स हेल्ड. यहां तक मैंने कर दिया. बाय यूटिलाइजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम फुल्ली, तो ये यूटिलाइज किया. 2 लाख का बोनस देना है, तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूटिलाइज कर लो. यूटिलाइज फॉर बोनस 20 है खाली यहाँ पे 20,000. सो 20 यूज कर सकते हैं. हमने बोनस कितने का दिया है स्टूडेंट्स? 50,000. लुक हियर, 50 का दिया है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो 20 है, तो अभी सिक्योरिटी प्रीमियम निल. अब कहा था बैलेंस कहाँ से लेना? सी रेफर द एडजस्टमेंट. बैलेंस इज यूटिलाइज फ्रॉम वेयर? जनरल रिजर्व. तो बैलेंस कितना लगेगा हमको? 30. टोटल बोनस वॉज फॉर 50. हियर आई कैलकुलेटेड. Out of that 20 I got it from here, so balance मतलब 30 यहाँ से. 66 minus 30 will be outer column 36 होगा. ठीक है स्टूडेंट्स? Followed. So what are the effects? What we did students? आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूँ. एडजस्टमेंट नंबर क्या है? ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है, B सॉरी, एडजस्टमेंट B. What we did? Add to share capital. यहाँ मैंने ऐड किया है ना, और फिर क्या किया मैंने? लेस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व यूज करो. ऐड टू शेयर कैपिटल, लेस फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड जनरल रिजर्व. दैट्स व्हाट वी हैव डन हियर. ओके, और यहां हम लोग ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, ऑफ द अबाउ 5,000 shares are issued as bonus shares. ऐसा लिखने का. So this was adjustment number B. C. Company on advice of independent valuer wishes to revalue the land at 1,80,000. स्टूडेंट देखो लैंड कितने का है? 110. उनको उसको रीवैल्यू करना है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना है, तो एडिशन कॉलम में आएगा 70.
180 करना है ना, उन्होंने कहा है, आई एम नॉट मेकिंग एनी असम्पशन, उनको क्लोजिंग 180 चाहिए, तो 110 से अगर 180 पे जाना है तो डेफिनेटली एडिशन 70 का करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स, ऑलवेज कैपिटल रिजर्व, सो अंडर रिजर्व्स इन सरप्लस वी मस्ट राइट कैपिटल रिजर्व। एसेट रीवैल्यू करते हैं ना तो उसका इफेक्ट कैपिटल रिजर्व में जाता है। फर्स्ट टाइम वी हैव डन दिस एडजस्टमेंट। सो यहाँ पे लिखा एडिशन कॉलम बिकॉज आपके लैंड की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, एंड सेकेंड इफेक्ट रिजर्व इन सरप्लस में कैपिटल रिजर्व 70. सो दीज आर द टू इफेक्ट्स. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर सी था स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट सी. व्हाट वी डिड, ऐड टू लैंड, एंड सेकेंड इफेक्ट हमने लिखा कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व मतलब रिजर्व इन सरप्लस में लिखा हमने, यहाँ ऐड किया. सेकेंड इफेक्ट अंडर रिजर्व इन सरप्लस आई रिकॉर्डेड कैपिटल रिजर्व 70. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड के लिए हम लोग क्या करते थे, जो हमारा लास्ट शेड्यूल है उसके नीचे एक नोट लिख देते थे बस, तो वही कर रहे हैं हम लोग. प्रपोज ऐसा नोट, प्रपोज डिविडेंड, कितना प्रपोज किया है, कितना रिकमेंड किया है, कितना प्रॉमिस किया है, 10% इंक्लूडिंग बोनस. सो 10% इंक्लूडिंग बोनस मतलब 10% ऑफ. अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन मैंने एक मिस्टेक कर दी, ये 2 लाख नहीं लिखना चाहिए, रुपीज इन 1000 बोला है ना, सो 3 जीरो हटा देते हैं, 200 लिखना चाहिए मुझे. आई एम सॉरी स्टूडेंट, क्योंकि वी आर राइटिंग रुपीज इन 1000 ना, इसके लिए तो 3 जीरो इग्नोर करना है, 200 लिखो. 200 मीन्स 2 लाख, सो 10% ऑफ 2 लाख डिविडेंड. So 2 lakh का 10% will be 20,000. But I will write only 20 because it is rupees in 1000. No second effect for this adjustment. पहले भी मैंने बहुत बार किया है ये proposed dividend. Students, ठीक है. Provision for tax is to be made 30,000. Students, यहाँ पे आएगा provision for tax. कोई advance tax तो नहीं दिया. Provision for tax for the current year 30,000. ठीक है. One effect यहाँ पे आ गया. Second effect. Short term provision, note number 6. Provision for tax 30. फिर मैंने गलती की स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये गलती कर दिया. I must write only 30 ना, we are recording rupees in 1000. So I must write only 30. 3 जीरो इग्नोर करो because ट्रायल बैलेंस में उन्होंने हमको rupees in 1000 का है, तो राइट जस्ट 30. It is 30,000 एक्चुअली. ठीक है. ट्रांसफर टू रिजर्व 15,000. स्टूडेंट्स, ट्रांसफर कैसे करते हैं, पहले भी मैंने ऐसा एडजस्टमेंट किया. ट्रांसफर टू विच रिजर्व ऐसा कुछ बोला नहीं है, रिजर्व्स में एक लाइन हमको कम पड़ जाएगी, चलो उसको एडजस्ट करते हैं. ट्रांसफर कहाँ से करते हैं, पीएनएल से. तो स्टूडेंट्स पीएनएल में माइनस करने का, माइनस ट्रांसफर टू रिजर्व. विच रिजर्व उन्होंने कहा नहीं है स्टूडेंट्स, जनरल रिजर्व के सिक्योरिटी प्रीमियम ऐसा कुछ कहा नहीं है. सो हम ऐसा कंसिडर करते हैं ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. ठीक है, जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. How much they have said transfer to general reserve कितना है स्टूडेंट्स, 15,000. So I must write only 15. Transfer to general reserve 15. तो जनरल रिजर्व में ऐड होगा स्टूडेंट्स प्लस ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल. पहले भी 3-4 बार मैंने ये एडजस्टमेंट किया है. 15 यहाँ स्पेस नहीं है तो थोड़ा ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स. तो ये चेंज हो जाएगा 36 प्लस 15. सो जनरल रिजर्व का आंसर ये 51 होगा. 51 आउटर कॉलम में इट विल बी 5 and 1. 66 प्लस 15 माइनस 30, सो 51,000 हो गई. ठीक है. यहाँ पे माइनस फ्रॉम पीएनएल एंड ऐड टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व. पहले भी मैंने किया है, सो आई एम नॉट राइटिंग एनी नोट फॉर दैट. भी सस्पेंस अकाउंट, वो भी एडजस्टमेंट हमने पहले किया है स्टूडेंट्स. वो सेल ऑफ मशीनरी, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ मशीनरी ऑन 1st April. सो पहला एडजस्टमेंट नंबर क्या है उसका, हियर आई एम रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर ई है, एडजस्टमेंट ई. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन वाज 5,000. ठीक है, 5,000. हाउ मच वाज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बीइंग 4,000. तो WDV हो गया 1 लेस सोल्ड, बेच दिया आपने. कितने में बेचा स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट में था ना, कैश रिसीव रिप्रेजेंट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट मशीन. तो आपको गेन हुआ स्टूडेंट्स 1,000. अगेन पहले भी डिस्कस किया, दिस गोज टू वेयर, ग्रॉस ब्लॉक डिडक्शन कॉलम. ये कहाँ जाएगा, डेप्रिसिएशन
डिडक्शन, फॉरगेट दिस, दिस विल गो टू अदर इनकम। पहले भी मैं लॉस आएगा तो अदर एक्सपेंस में लिख देने का। वाई वी इग्नोर दिस स्टूडेंट्स, WDV कॉलम है बट उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग है, देयर इज नो सेल ऑफ एसेट नेट ब्लॉक में, और सेलिंग प्राइस का कोई कॉलम ही नहीं है, इसके लिए दोनों इग्नोर करते हैं हम लोग, ठीक है। सो ग्रॉस ब्लॉक डिडक्शन कॉलम प्लांट का ग्रॉस ब्लॉक 5000, सो आई विल राइट ओनली 5 रुपीज इन 1000। डेप्रिसिएशन 4000, डिडक्शन कॉलम 4, ठीक है। अदर इनकम 1000, अदर इनकम नोट नंबर 12, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, जस्ट 1 लिखूंगा, 1000 है ना, तो आई विल राइट 1 रुपीज इन 1000। पहले भी हमने ये एडजस्टमेंट किया है स्टूडेंट, दिस इज नॉट द फर्स्ट, आई थिंक थर्ड या फोर्थ टाइम मैं ये एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। सो नो नीड टू राइट अ नोट, एक्चुअली नोट तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया। सो एक इफेक्ट यहाँ पे है, एक इफेक्ट यहाँ पे है, ओके। एंड अदर इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ई। जी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेटर्स इनटू लास्ट एडजस्टमेंट एफ, depreciation is to be provided on plant and machinery at 10% on cost. So this is the cost students, plant and machinery 385, उसका 10%, it is 38.5। यहाँ पे आएगा students, मैंने डैश डाल दिया, it will appear here 38.5। they have said charge depreciation on cost। अच्छा मगर ये बेचा भी ना, I'm sorry 385 minus 5 into 10%, so 38 ही होगा student, 38.5 नहीं 38, ओके। वाई वी सब्ट्रैक्ट दिस, सिंपल रीजन, देखो स्टूडेंट्स पहले भी किया है मैंने एडजस्टमेंट ई, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट 2000 कैश रिसीव्ड फॉर सेल ऑफ सम मशीनरी ऑन 1st April 2001, ट्रायल बैलेंस 2002 मार्च 2002 का है, दैट मीन्स मशीन आपने फर्स्ट डे ऑफ द ईयर आपने मशीन बेच दी, ये वाली मशीन। तो जो मशीन साल के शुरू में बेच दिया, अ मशीन विच यू सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इट वाज नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जब यूज नहीं किया तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं होगा। इसके लिए आई हैव रिमूव 385 में से 5 माइनस किया, वी गॉट 380 का 10%, ओके। दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर एफ, दैट्स ऑल, देयर इज नथिंग एल्स। सारे एडजस्टमेंट हो गए, नोट्स क्लोज करते हैं। अच्छा डेप्रिसिएशन हमेशा कहाँ जाता है, डेप्रिसिएशन का टोटल, दिस गोज टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये टोटल ये 38 आपका चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में स्टूडेंट्स, ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 38, ठीक है। ये 38 कैसे आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 385 माइनस 5 इंटू 10%, 385 माइनस 5 इंटू 10%, सो वी गॉट 38, ओके। अब शेड्यूल्स क्लोज करते हैं, पहले कौन से क्लोज करते हैं, जो P&L से रिलेटेड है, दिस इज 350, ये सिर्फ 1 है टोटल, मटेरियल कंज्यूम्ड इज 150, दिस इज 10, 40 प्लस 15 55, 55 प्लस 20 75, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 350, अदर इनकम 1, सो टोटल विल बी 351। Number 13 cost of material is 150, number 14 is 10, number 15 other expenses is 75, और कुछ भी नहीं है, 150 10 38 75 273 351 minus 273 78, provision for tax minus होता है, so final answer 48। This is your P&L statement। पहला ये क्लोज किया 11 से 15, ओके। देन दिस गोज टू ये 48 गोज टू रिजर्व एंड सरप्लस स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट, रिजर्व में थोड़ी जगह कम हो गई, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 48 है, 30 नहीं, सॉरी 48 48, 35 प्लस 48 83, ये माइनस है, माइनस 15 एंड माइनस 9, दिस इज 59। अब टोटल करते हैं, दिस रिमेन्स 200, रिजर्व्स का टोटल करेंगे, रिजर्व्स कहाँ तक है, यहाँ तक है स्टूडेंट, सॉरी 51 प्लस 59 प्लस 70, रिजर्व्स इज 180,
डिबेंच लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 100, क्रेडिट ट्रेड पेबल 25, 5 + 6 11 अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 30 रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल 46, स्टॉक 45, कैश बैंक 15. ओके, सो अब ये सब यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में. 200 रुपीज इन 1000 है ना, एंड दिस इज 180. So 200 plus 180 will be 380. Long term borrowings 100. 100 plus 0, outer column 100. Trade payable 25. Other current liability 11. Provision for tax 30. 25 plus 11 36. 36 plus 30 is 66. 380 plus 100 66. 546. अच्छा, फिक्स एसेट ठीक है, बाद में लिखना. फिक्स एसेट नंबर 8 क्या था स्टूडेंट्स? नंबर 8 वाज इन्वेंट्रीज 45, 9 वाज ट्रेड रिसीवेबल्स 46, 10 वाज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 15. ओके, 46, 45, 15. सो दिस इज 106. फिक्स्ड एसेट यहाँ पे है स्टूडेंट्स. फिक्स्ड एसेट इज ये ओपनिंग प्लस एडिशन लिखना. ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस दिस, सो 380 हो जाएगा ये. ओके, फिर यहाँ आ जाओ. ये तो कुछ भी नहीं, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता. सो ये सेम 86 प्लस 38 माइनस 4, सो दिस इज 120. ओपनिंग नेट ब्लॉक, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन 110 माइनस 0 110. Opening cost 385 minus opening depreciation 86, so 299. Closing cost 180 minus closing depreciation 0, so 180 minus 0. Closing cost 380 minus 120, 260. 260 plus 180 कितना हो गया? 180. 440. सो 440 यहाँ लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, एंड देयर इज नथिंग एल्स स्टूडेंट्स. ये सब डैश डैश डैश, तो आउटर कॉलम 440 प्लस 106, सो इट इज 546. बैलेंस शीट टाली हो गई. ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स. खाली वो रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया, बाकी तो सारे एडजस्टमेंट्स इजी. सो दिस इज द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये आपके नोट्स. थोड़ा रिजर्व्स में जगह कम हो गई स्टूडेंट्स, बट एडजस्टमेंट सब हमने पहले किए हैं ना. रिजर्व्स में कुछ नया नहीं था. बोनस का भी एडजस्टमेंट पहले लास्ट टाइम एक बार मैंने किया. एंड दिस इज फिक्स्ड एसेट. ये आपका वर्किंग नोट है.